professed about liberty, equality, fraternity, and strive to balance the need for justice for the downtrodden and the needy. And there could be no place better than Gauhati, the gateway city of the Northeast, to speak about the ideas of this great law scholar who spearheaded the writing of the Indian Constitution. Baba Saheb emphasized on access to justice for all, regardless of their social or economic background. And in this celebratory fervor, let us be mindful that despite the progress made by our country, inequality is deep-rooted, particularly for those who are underprivileged, socially deprived, and also geographically distanced. We all know about the keenness of the Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud, and his constant efforts to ensure that justice is made available to everyone, be it the marginalized, women, Dalits, transgenders, the tribal populace of our country. Through use of technology, he has removed many barriers in the court functioning. It has enabled a litigant from, let's say, Arunachal Pradesh to have his local lawyer argue a matter before the Supreme Court in Tilak Marg in Delhi without having to pay the high fee for a Delhi-based lawyer. The Union Law Minister, Shri Kiran Rijiju, has time and again assured the government's cooperation for improving the justice delivery system in the country. Asomor Mukhyamantri, Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoriyai, has also assured full governmental cooperation for development and judicial infrastructure on this auspicious occasion of celebrating of 75 years of the Gauhati High Court. I would request both the Law Minister and the Chief Minister to provide necessary support so that access to justice does not remain a difficult process for the common litigant. Let me also take advantage of the presence of the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khanduji, and the Law Minister, Shri Kiran Rijiju, both of whom hail from Arunachal Pradesh. A new high building is under construction in Itanagar, the capital city of Arunachal Pradesh, and I will request both these very powerful functionaries of government to give us the boost and support so that this project of a new building for the Itanagar, Arunachal Pradesh bench of the Gauhati High Court becomes a reality ahead of the targeted schedule and should not slack either for lack of guidance or for lack of funds. In the context of improving our legal system, let me also acknowledge our Manoniya Pradhan Mantri Dangoria, Narendra Modi Dangoria, who besides making endeavor to transform India into a developed nation, has also focused his attention towards securing a justice system which is not only simple, but also caters to all segments of society. The Prime Minister, in the Conference of Chief Ministers and the Chief Justices of the High Courts at Vigyan Bhavan in Delhi in April last year, significantly said that we are trying to ensure that in the coming days, there is not only a complete legal terminology for the laws in our country, but also a simpler version of the same laws in a language well understood by the common man. Such efforts, in my estimation, are an important steps towards access to justice, as was spoken by Dr. Ambedkar, the founding father of the Indian Constitution. Ladies and gentlemen, may I request you to give a round of applause to the Honorable Prime Minister for the initiative that he has taken towards making
justice accessible to the common man. Today, as we celebrate the Assamese New Year and the birthday of Dr. Ambedkar, let me congratulate the Gauhati High Court Chief Justice Sandeep Mehta and his brother and sister judges, the lawyers who are practicing here, the judicial officers who have come from all over the 4 states covered by the Gauhati High Court, for being an integral part of the justice delivery system in the Northeast and being ever so conscious on the need to balance justice for the poor and marginalized of the society. Ladies and gentlemen, I'll just take half a minute more. As you know, in the Supreme Court, we have judges who represents all corners of the country. For instance, in Gauhati, we have the Rajyapal Mahoday, Chief Justice, both hailing from Rajasthan. And similarly, in Delhi Supreme Court, we have 2 honorable judges, Justice Ajay Rastogi, Justice Dinesh Maheshwari, who hail from Rajasthan. If I am to greet both these distinguished judges in the language that is spoken in Rajasthan, perhaps I would tell them, and I will request, there are 2 ladies who are present here, perhaps I'll say, Thare Sumilar Anand Ayo. Next, if I have to speak about the representative from Arunachal Pradesh, the Law Minister and the Chief Minister both have had their education in Delhi, and I find the Law Minister very, very capable and fluent in his delivery of lectures in Hindi. And मैं उनको कहूँगा, और जो हिंदी वाले हैं, आपसे मिलकर बहुत आनंद महसूस हुआ. We are in Assam, and we can't be avoiding a greeting in Assamese, and that I have no difficulty because that is my mother tongue. So to the Manoniya Mukhyamantri, Sri Himanta Biswa Dangor, and all the ladies and gentlemen and the students who are present here, Apunalokok log pai bahut anandito hoisu. A final attempt at greeting I will try today, and you will pardon me if I go wrong. We have 2 colleagues in the Supreme Court who come from Gujarat. We have brother Mukesh Bhai Rasiklal, who is a judge from Gujarat, and we have Bela Ben. And if I have to greet the Prime Minister and these 2 distinct judges from the Supreme Court, perhaps I would say, Tamne Maline Anand Thayo. With this, I thank you everybody and wish you a very, very happy Rongali Bihu. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your speech. May I now request Honorable Union Law Minister Sri Kiren Rijiju to kindly address the gathering. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गवर्नर असम के गुलाब चंद कटारिया जी, आदरणीय मुख्यमंत्री असम के डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, आदरणीय अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय, चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट जस्टिस संदीप मेहता जी, असम के लॉ मिनिस्टर रंजीत दास जी, और असम और पूरे
हमारे 4 राज्यों के जितने जजेस हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट्स के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिगण, एमिनेंट मेंबर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट के बार के यहाँ आए हुए हैं, यंग लॉ स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा दिन है। वाकई में ऐसा समय कम आता है और जिंदगी में कम ऐसे समय में शरीक होने का मौका मिलता है। 75 साल पूरे होने पर आज गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्लोजिंग सेरेमनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूरे जुडिशियल और दोनों बार और बेंच के फ्रेटर्निटी को अभिनंदन करना चाहता हूं। आज बोहाग बिहू का माहौल पूरा असम और देश भर में चल रहा है और भी कई त्योहारों का आज हमारा देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसा शुभ अवसर पर मेरा तरफ से मैं इस पवित्र दिवस का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। অসমৰ আমাৰ লগৰীয়া আছে সবক মই বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু মই সদায় কৈ থাকে যে আমাৰ কাৰণে অসম কক বা অৰুণাচল কক বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট একে হিচাপতে আমি কাম কৰি আছিলে, এতিয়া আমি একে মনৰ একে ভাবি চিন্তা কৰি কাম কৰি আছে। মই সদায় কৈ থাকে যে মই যেতিয়া জন্ম লৈছে তেতিয়াতো অসমীয়া বুলিয়ে জন্ম লৈছিলে, অৰুণাচল তো 1972 বেলেগ হৈছে, তার আগতে তো আমি সবে একেই আসলে, এডমিনিস্ট্রেটিভ কনভিনিয়েন্স কারণে আমি বেলেগ বেলেগ হয়েছে, কিন্তু কাম কাজ তো একেলগেতে আমার প্রাইম মিনিষ্টাৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ গোটেই নৰ্থ ইষ্ট আগবঢ়ি আছে। সেই পুৰা টিম আজি আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ এটা নতুন চিন্তা ভাবি কৰি আমি কাম কৰিবলৈ আমি প্ৰতিবদ্ধ হ'ম। আৰু আমাৰ স্পেচিয়েলি 75 years of India's independence और 75 years of the existence of Gauhati High Court, same time हेतु कारणे এটা সেলিব্রেশনৰ মোডটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আমি হৈ আছে। নহলে মই কেতিয়াবি এটা হাই কোৰ্টৰ প্লেটিনাম জুবিলি ইমান লম্বা সেলিব্রেশন কৰাটো মই কেতিয়া দেখা নাছিলে। ফার্স্ট টাইম মানে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ আমি দেখি আছো। मैं जस्टिस संदीप मेहता आपके पूरे जुडिशियल फ्रेटर्निटी जो हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, आपको अभिनंदन इसलिए विशेष रूप से करना चाहता हूं कि आप नए नए चीफ जस्टिस बन करके यहाँ जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में आए और आप ही के समय में प्लेटिनम जुबली का सेलिब्रेशन इतना शानदार तरीके से आपने किया है और आज समापन समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे बीच में होना हम सबके लिए अत्यंत गौरव का पल है। आज हमारे जो संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म जयंती भी है। हम लोग अलग अलग रूप से आज दिन भर में वो भी मनाया, बिहू का भी माहौल था। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का बनाने का सोच रहा था उस समय सबसे प्रमुख रूप से जो वाक्य आया और बाद में संविधान के प्रियम्बल में जो रखा गया है वो है न्याय, जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। तो जो न्याय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो न्याय मिलना चाहिए वो मैं सचमुच में कहूं तो आज देश में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होते हुए हम सब देख रहे हैं। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट में जब हम लोग छात्र जीवन में और बाद में भी काम करते करते हम सोचते थे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर गांव, बॉर्डर एरियाज में जो रहने वाले हैं उसको जो बेसिक सुविधा है वो कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। और आज मैं फक्र से कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो विशेष रूप से मूलभूत सुविधा है वो गांव गांव घर घर तक पहुंच रहा है। वही मैं मानता हूं कि न्याय का सबसे पहला हमारा जो प्रभाव वही जो फैसिलिटी है उसी से ही लोगों तक पहुंचता है। संविधान में जो भी हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा से जो कहा गया है, आज मैं मानता हूं
कि हमारा नॉर्थ ईस्ट हर क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उससे मैं फख्र महसूस करता हूं। और साथ साथ में मैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का दूर दराज एक आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, और हमारे बाबा साहब अंबेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, वो ऐसे समाज से आते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में हम लोगों को दिखाया है कि मेहनत करके देश के लिए काम करने का जो सपना लेकर चलेंगे तो कुछ ना कुछ करने का जरूर सबको मौका मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके इस नॉर्थ ईस्ट के दूर जगह से आने वाला एक सांसद को इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाया, और इसके लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि जो विश्वास हमें जताया है, हम जमीन पर जाकर के उसका हम पूरा करेंगे। चीजें हैं मैं उल्लेख करना चाहता हूं, लेकिन आज समय कम है इसलिए मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो हमारे लोकल भाषाओं में, असम में जैसे असमीज है, इसके अलावा हमारा नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे जितना भी जो कम्युनिटीज है, सबके भाषा को लेकर के कई काम किया जा रहा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जरिए अभी पिछले महीने जो किताब लॉन्च किया गया है, उसमें हमारे जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस को लेकर के किताबें तैयार किया गया है। वो डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ है, राभा कम्युनिटी, तिवा कम्युनिटी, जेमे नागा, असम के बोडोस, अरुणाचल के निशीज, त्रिपुरा के हलम्स, इनका जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस को लेकर के जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, मैं मानता हूं को न्याय दिलाने में ये सारे जो काम किए हैं, बहुत उससे मदद मिलने वाले हैं। जो अल्टीमेट गोल है हम लोगों को जिंदगी में, एक महान देश का नागरिक होने के नाते, आज प्रधानमंत्री जी ने जो लास्ट माइल, आखिरी छोर में जो रहने वाले तक को पहुंचने का जो लक्ष्य दिया है, रीचिंग द लास्ट माइल, उसको प्राप्त करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तरीके से जो किया जा रहा है, उसमें जुडिशरी के क्षेत्र में जो काम किया है, मैं उसको संक्षेप में बताना चाहता हूं। आपको ये जानकर के पता लगेगा कि पिछले 9 सालों में जुडिशरी के लिए मोदी जी का सरकार की ओर से क्या क्या किया गया है। 2014 तक हमारे देश में टोटल कोर्ट हॉल्स, उनका संख्या 15,818, 15,818, और 9 साल के अंदर में, अभी 9 साल पूरे नहीं हुए हैं, और ये संख्या बढ़ के 2,297 हो चुके हैं। और अभी वर्तमान में जो लास्ट स्टेज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो हमारे न्याय विकास पोर्टल के माध्यम से जियो टैगिंग करके हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, 2,806 इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस गति में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। टोटल रेसिडेंशियल यूनिट्स 2014 हमारा देश में था 10,211, और अभी जो 1,655 अंडर कंस्ट्रक्शन को मिला के और जो कंप्लीट किया गया है, उसका संख्या हो गया 20,407, 20,407। तो डबल 9 साल के अंदर में टोटल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नंबर्स है, वो डबल आगे बढ़ा है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि ये जो नए भारत के समय में न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट मोदी जी ने लॉन्च किया है, उसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहा है डिजिटल इंडिया। भारतीय कोर्ट्स को डिजिटलाइज करने के लिए, उसको टोटल पेपरलेस इंडियन कोर्ट्स का कंसेप्ट का सपना को पूरा करने के लिए अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया गया है, बजट में 7,000 करोड़ का ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट का फेज 3 का घोषणा किया गया है। मैं मानता हूं कि यह 7,000 करोड़ का जो एलोकेशन हुआ है, पहली बार भारत के इतिहास में, इससे फ्यूचर विजन, जो पेपरलेस इंडियन कोर्ट का जो हमारे सोच है, उसका पूरा करने में सहायता मिलेगा। और लोअर जुडिशरी का अभी चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र किया है, पिछले साल कैबिनेट की ओर से 9,000 करोड़ लोअर जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो घोषणा हुआ, उसमें राज्य सरकार के मदद से 40% राज्य सरकार को उसमें कंट्रीब्यूशन करना होता है। मैं मानता हूं कि ये 2026 का जो टारगेट है,
1000 करोड़ को पूरा खर्चा करने में राज्य सरकारों का पूरा मदद मिलेगा। और लोअर जुडिशरी का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर्ट रूम से लेडीज का अलग से लोअर हॉल, टॉयलेट बाथरूम का अलग से सुविधा, हमारे दिव्यांगजनों के लिए अलग से वहां व्यवस्था बनाना है। ये जो सारा प्रोविजन लोअर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो हमने जो लॉन्च किया है, उसके लिए मैं आप सबके पूरे भारत के जुडिशियल की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, और जुडिशरी के क्षेत्र में भी जो मैंने आपको गिन के बताया, ऐसे हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे। इसी का प्रतीक है आज आदरणीय प्रधानमंत्री गुवाहाटी हाईकोर्ट का प्लेटिनम जुबिली का जो क्लोजिंग सेरेमनी है, इस समापन प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में हो है। ये हम सब के लिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए, और जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाद 2012 तक तो सब एक ही थे, चाहे त्रिपुरा हो, दिल्ली हाईकोर्ट हो, या हमारा इंफाल का हाईकोर्ट हो मणिपुर का, ये सारा हम लोग एक ही गुवाहाटी हाईकोर्ट के कोख से जन्म हुआ है। और सभी नॉर्थ ईस्ट के पूरे जुडिशियल फ्रेटर्निटी को आज के इस प्लेटिनम जुबली के अंतिम हम लोग जब यहाँ सेरेमनी मना रहे हैं, मेरा तरफ से सबको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। माननीय असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने राज्य में विकास को नया आयाम और नई परिभाषा दी। शासन और प्रशासन को इन्होंने एक नई दशा, दिशा एवं दृष्टि दी। এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আদৰৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া, অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল শ্ৰী গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মানীয় ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি হৃষিকেশ ৰয় ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি সন্দীপ মেহতা ডাঙৰীয়া, উপস্থিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকল, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাসকল, জুডিচিয়েল অফিচাৰসকল, সন্মানীয় সুধীবৃন্দ, আজি আমাৰ বাবে এটা পৰম সৌভাগ্যৰ দিন। ৰাতিপুৱাই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমখন অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স অসমবাসীলৈ উপহাৰ দিলে। এনে এক সুন্দৰ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমত নতুন 3খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে। আৰু আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 14,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ বা উদ্বোধন কৰিব। উত্তৰ পূবৰ বাবে, অসমৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা আনন্দৰ দিন। मैं भारतवर्ष का सम्मानीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहाग बिहू का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। गुवाहाटी उच्च न्यायालयৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্যই ৭৫টা বছৰত ভৰি দিলে। আজি ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হল। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি পৰম্পৰা, যি ঐতিহ্য আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ ন্যায় ব্যৱস্থালৈ ইয়াৰ যি অৱদান, তাৰ বিষয়ে যোৱা 5 তাৰিখৰ পৰা আমি বিভিন্ন সভাত আলোচনা কৰিছো আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গৌৰৱময় ৭৫টা বছৰৰ যি পৰম্পৰা, তাক আমি সকলোৱে সন্মান জনাইছো।
ভাৰতৰ স্বাধীনতাই ৭৫ বছৰ পাৰ কৰিলে। এতিয়া আমাৰ অমৃতকাল আৰম্ভ হ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সপোন দেখে যে অমৃতকালত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বগুৰু হওক, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হওক, ভাৰতৰ পৰম্পৰা ঐতিহ্য বিশ্বৰ চাৰিওফালে বিয়পি পৰক। मैं यही कामना करता हूं कि ये अमृत काल में एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशियरी हो, सबका उद्देश्य एक ही दिशा में जाना चाहिए। कैसे अगले 25 साल में हम हमारे भारतवर्ष को एक विश्व गुरु का आसन में देख सकता हूं, कैसे हमारे भारतवर्ष एक डेवलप कंट्री नहीं एक सुपर पावर बन सकता है। प्रधानमंत्री जी का यह सपना साकार करने के लिए न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या लेजिस्लेचर हो, सबको एक दिशा में काम करना है। इसलिए ये प्रधानमंत्री जी का आशा नहीं है, ये हमारा देश का सपना है, पूरा भारतवासी का सपना है, जो प्रधानमंत्री जी ने या हमारे कंट्री में हो या देश का बाहर यही सपना का साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और हमें सब मिलके ये मेहनत को कैसे लक्ष्य तक जा सकता है, ये 25 साल में अमृत काल में, इसके लिए हमें सबको मिलके काम करना है। भारतर गणतांत्रिक व्यवस्था न्यायपालिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका আছে। गुवाहाटी उच्च न्यायालय যোৱা ৭৫ বছৰত অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে সেই দায়িত্ব পালন কৰিলে। ৭৫ বছৰৰ প্লেটিনাম জুবিলী আমাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি সন্দীপ মেহতা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে আমি পালন কৰিছো আৰু আমি সকলোৱে অনাগত ২৫ বছৰৰ আমাৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে অৱগত হৈছো। অসম চৰকাৰে অত্যন্ত আনন্দৰে সৈতে ক'ব বিচাৰে যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়, কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ সকলো ন্যায়পালিকাৰ অংগক আমি একত্ৰিত কৰি গুৱাহাটীত এই বছৰৰ পৰা এখন জুডিচিয়েল চিটি বা জুডিচিয়েল পৰিসৰৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম, য'ত সকলো ধৰণৰ সুবিধা তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে আৰু অধিবক্তাসকলে বিভিন্ন সময়ত পোৱা কষ্ট লাঘৱ হয়। সকলোৱে একেটা স্থানতে সেশন কোৰ্টৰ পৰা CGMৰ পৰা হাই কোৰ্টলৈকে সকলোৱে একেটা স্থানতে এই সুবিধাসমূহ উপলব্ধ হ'ব পাৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভাৰতৰ ন্যায়পালিকাৰ অগ্ৰগামী যাত্ৰাত এক महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करक। प्रधानमंत्री मोदी डांगरियाए आमाक কৈছে इज ऑफ डुइंगर लगते इज ऑफ जस्टिस इ एक बहुत बेसी गुरुत्वपूर्ण विषय। मैं भाबो ৭৫ বছৰ এই প্লেটিনাম জুবিলীত আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম যে উত্তৰ পূব আৰু অসম ন্যায় ব্যৱস্থাত দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্তজনক সামৰি আমি জাস্টিস ডেলিভাৰী সিস্টেমক অন্তোদয়ৰ লক্ষ্যৰ লগত একেলগে যুক্ত কৰি আৰ্তজনৰ সাৰথি কৰি নিৰ্মাণ কৰিম। সকলোকে পুনৰ এবাৰ ৭৫ বছৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছো আৰু অমৃত কালৰ বাবে আগতীয়া শুভেচ্ছা জনাইছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ ভাষণৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো। To mark the glorious moment of celebrating 75th years of existence of the Gauhati High Court, the solitary institution dispensing justice over 4 states in Northeast, we are publishing a souvenir. We are putting in the best possible efforts to portray this prestigious institution's illustrious history as well as the journey since its inception to picture presentation and the writings of legal luminaries. On the occasion of the release of this souvenir, we hope to be successful in our goal of providing outlets for the next generation to seek
knowledge about the legacy and heritage of this institution through this souvenir. May I now request Honorable Prime Minister of India to kindly release the souvenir. Thank you so much. महोदय, असम पुलिस ने पुलिस अधिकारियों के लिए एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसके माध्यम से वे CCTNS और वाहन डेटाबेस से अभियुक्त की खोज और वाहन की खोज कर सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मोबाइल ऐप लॉन्च करने का अनुरोध करती हूँ। Assam Police has designed a mobile application, Assam Cop, for accused and vehicle search for the crime and criminal and the all-India Vahan databases. This new app intends to take Assam Police another step forward towards application of technology in policing. It is an exclusive application for the field police personnel, introduced for the first time in Assam and Northeast. In vehicle search, a police officer during patrolling or Naka duty can check whether the said vehicle is involved in any crime or whether it is a stolen vehicle. One can check whether the registration number plate is genuine or not, who is the actual owner of the vehicle, and what is the model and make of the vehicle. This app will break the backbone of the vehicle lifters and also help in immediate detection of the duplicate number plates. In accused search, a police officer can verify whether a suspect person is involved in any offence in the state. When a name is typed, list of all the cases against that individual will be displayed. The police officer can also check the FIR status and also download the FIR copy. This will help in tracking wanted criminals at Naka points, especially at interstate borders. Concerned police stations can be informed immediately. This feature will help in tracing the absconder. Police officers can download this app on their mobile phones and log in using their CCTNS user ID and password. A step forward in modernization of the Assam Police Force. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मेरे सहयोगी कानून मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय जी, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता जी, अन्य सम्मानित जज, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आज गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेलिब्रेशन में शामिल होने का और आपके बीच आकर के इस यादगार लम्हे का हिस्सा बना हूं। गुवाहाटी हाई कोर्ट की 75 वर्ष की ये यात्रा
एक ऐसे समय में पूरी हुई है जब देश ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये हमारे लिए अब तक के अनुभवों को सहेजने का भी समय है और नए लक्ष्यों के लिए जवाबदारी और जरूरी बदलावों का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। खासतौर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की अपनी एक अलग विरासत रही है, अपनी एक पहचान रही है। एक ऐसी हाईकोर्ट है जिसके ज्यूरिडिक्शन में का दायरा सबसे बड़ा है। असम के साथ साथ आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड यानी 3 और राज्यों को भी सेवा की जिम्मेदारी निभाते हैं। 2013 तक तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में पूर्वोत्तर के 7 राज्य आते थे। इसलिए गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की इस यात्रा में पूरे पूर्वोत्तर का अतीत जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक विरासत जुड़ी हुई है। मैं इस अवसर पर असम और पूर्वोत्तर के सभी लोगों को और खासकर यहां की अनुभवी लीगल फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज ही, और जब सब लोगों ने इसका उल्लेख भी किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। हमारे संविधान के निर्माण में बाबा साहब की मुख्य भूमिका रही है। संविधान में समाये समानता और समरसता के मूल्य ही आधुनिक भारत की नींव है। मैं इस पुण्य अवसर पर बाबा साहब के चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी और सबका प्रयास के बारे में विस्तार से बात की थी। आज 21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और उसकी आकांक्षाएं असीम है। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर हमारी सशक्त और संवेदनशील जुडिशरी की भूमिका भी उतनी ही अहम है। देश के संविधान की भी हम सभी से ये निरंतर अपेक्षा है कि हम समाज के लिए एक वाइब्रेंट, स्ट्रांग और आधुनिक लीगल सिस्टम बनाए। एस्पिरेशन इंडिया इसके सपनों को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही अंगों की है। हम कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण पुराने और अनुपयोगी कानूनों को निरस्त करना भी है। आज यहां कई कानूनी दिग्गज मौजूद हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां के कई कानूनी प्रावधान ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। कई ऐसे कानून हैं जो पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। सरकार के स्तर पर हम इनकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। हमने ऐसे 2000 केंद्रीय कानूनों की पहचान कर उनको खत्म कर दिया और जो अप्रचलित और निरर्थक हो गए थे, कालबाह्य हो गए थे, हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को भी समाप्त किया है। व्यापार के दौरान होने वाली अनेक छोटी गलतियों को भी हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इस सोच और अप्रोच ने
देश की अदालतों में केसेस की संख्या को भी कम करने में अहम भूमिका निभाई है। साथियों, सरकार हो या जुडिशरी, अपनी अपनी भूमिकाओं में हर संस्था का संवैधानिक दायित्व सामान्य मानवीय की ईज ऑफ लिविंग से जुड़ा है। आज ईज ऑफ लिविंग के इस लक्ष्य के लिए टेक्नोलॉजी पावरफुल टूल बनकर उभरी है। सरकार में हम हर संभावित क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। डीबीटी हो, आधार हो, डिजिटल इंडिया मिशन हो, ये सभी अभियान गरीब को उनके अधिकार दिलाने का बहुत बड़ा माध्यम बने हुए हैं। आप सभी पीएम स्वामित्व योजना से भी शायद परिचित होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश, विकसित देश भी जिस चुनौती से जूझ रहे हैं, उनमें से एक है प्रॉपर्टी राइट्स की समस्या। प्रॉपर्टी राइट्स स्पष्ट ना होने से देश का विकास रुकता है, अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता है। आपको ये जानकर खुशी होगी, पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से भारत ने इसमें बहुत बड़ी लीड ली है। आज देश के 1 लाख से ज्यादा गांवों में ड्रोन के जरिए मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है और लाखों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा चुके हैं। इस अभियान से भी जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी, जनता की परेशानी कम होगी। साथियों, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अत्याधुनिक बनाने में टेक्नोलॉजी के लिए असीमित स्कोप है, ये हम अनुभव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी इस दिशा में बहुत सराहनीय काम भी कर रही है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस साल के बजट में ई कोर्ट मिशन फेज 3 का ऐलान किया गया है। पूर्वोत्तर जैसे पहाड़ी और रिमोट एरिया के लिए तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी अहम हो जाता है। आज एफिशिएंसी बढ़ाने और जस्टिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए दुनिया भर के लीगल सिस्टम में एआई को भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया जा रहा है। हमें भी एआई के जरिए कोर्ट की कार्यवाही को सामान्य मानव के लिए सरल बनाने के ईज ऑफ जस्टिस के प्रयास बढ़ाने चाहिए। साथियों, न्याय व्यवस्था में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पूर्वोत्तर में तो स्थानीय न्याय व्यवस्था की एक समृद्ध परंपरा रही है और अभी किरण जी ने उसका बड़ा विस्तार से वर्णन भी किया। और मुझे बताया गया है कि प्लेटिनम जुबिली सेलिब्रेशन के अवसर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 6 किताबें प्रकाशित की है। ये किताबें कस्टमरी लॉज पर लिखी गई है। मैं समझता हूं ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस तरह की प्रथाओं के बारे में भी लॉ स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। साथियों, ईज ऑफ जस्टिस का एक प्रमुख अंग देश के नागरिकों को कानून के हर पक्ष की सही जानकारी होना भी है। इससे देश और संवैधानिक संस्थाओं में उसका भरोसा बढ़ता है। इसलिए
सरकार में हमने एक और प्रक्रिया शुरू की है। जब कोई नया कानूनी मसौदा तैयार होता है तो उसका एक सिंपल वर्जन भी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि कानून ऐसी भाषा में लिखा जाए जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ऐसी ही अप्रोच हमारे देश की अदालतों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। आपने देखा होगा, हमने एक भाषिणी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि हर भारतीय अपनी भाषा में इंटरनेट और उससे जुड़ी सेवाएं हासिल कर सके। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप इस भाषिणी वेब पर जरूर जाके देखिए, बहुत सामर्थ्यवान है। विभिन्न कोर्ट्स में भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ लिया जा सकता है। साथियों, एक अहम विषय जिसको ऋषिकेश जी ने भी उल्लेख भी किया, हमारी जेलों में बड़ी संख्या में अनावश्यक रूप से बंद कैदियों का भी रहता है। हमारे मेहता जी ने उल्लेख किया, किसी के पास जमानत के पैसे नहीं है तो किसी के पास जुर्माना भरने के नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ हो गया है लेकिन परिवार के लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं है। ये सब लोग गरीब और कमजोर वर्ग से आते हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे छोटे अपराधों में वर्षों से जेलों में ही है। इनके प्रति संवेदनशील होना सरकार और न्यायपालिका दोनों का कर्तव्य है। इसलिए इस साल के बजट में हमने ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद देने के लिए अलग से प्रावधान कर दिया है। केंद्र सरकार ये बजट राज्य सरकारों को देगी ताकि इन कैदियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें जेल से बाहर निकाला जा सके। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए एक संस्थान के तौर पर हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, देश हित में हमारे कार्य सर्वोपरि होने चाहिए। विश्वास है हमारी यही भावना हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएगी। मैं एक बार फिर आप सभी को प्लेटिनम जुबिली सेलिब्रेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद महोदय। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছো। ৰঙালী শুভেচ্ছাৰে সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধি কামনা কৰি আমি অনুষ্ঠান সামৰিছো। देवी और सज्जनों, अब सभी उपस्थित गणों का